میں تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں، کمانڈر محب اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 مہینہ پہلے تم نے میری اور کمانڈر رشید کی باتیں سنی تھیں۔ گلمرگ کے قریب اس ڈپو میں اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی گولہ بارود وادی کے بے گناہ اور معصوم کشمیری عوام پر برسایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان شیطانوں کو گولہ بارود استعمال کرنے کا موقع ملے، ہم اس ڈپو کو تباہ کر دیں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یوں تو اس وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن میں نے اور کمانڈر رشید نے طے کیا ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہیں کی جائے گی۔ صرف گنتی کے چند نوجوان ہوں گے جن کا انتخاب ہم دونوں نے کیا ہے، اور ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ تمہارا انتخاب اگرچہ میں نے کیا تھا، مگر تمہارے نام کی سفارش کمانڈر رشید اور عبدالغنی لون نے بھی کی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ 1 منٹ پہلے میری پوری بات سن لو۔ کمانڈر محب اللہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا۔ ہم نے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے جو پارٹی تیار کی ہے اسے ڈیتھ اسکواڈ کا نام دیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کارروائی میں خود اپنے زندہ بچ جانے کے امکانات بھی 1% سے زیادہ نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر، تم لوگ موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو، اس لیے اگر تم… میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمانڈر۔ اس مرتبہ میں نے اس کی بات کر دی، لیکن اس حقیقت سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ مجاہد کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اور صرف آگے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان بھیڑیوں کے بھٹ کو تباہ کر کے اپنے لوگوں اور وادی کو ایک بڑی تباہی سے بچا لوں تو میں 100 مرتبہ موت کے منہ میں کودنے کو تیار ہوں۔ میں اپنا نام واپس نہیں لوں گا کمانڈر۔ کمانڈر محب اللہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار ہو کر میری پیشانی چوم لی۔ تم جیسے نوجوانوں میں یہ جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور ہماری منزل ہے آزادی۔ وہ زنجیریں ایک روز ضرور ٹوٹیں گی جنہوں نے کشمیریوں کی آزادی سلب کر رکھی ہے۔ ہم اس جنت سے ان شیطانوں کو نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے 3 اور آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بھی کاشتکاروں کی طرح موٹے کپڑے کے لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے۔ وہ ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر ہمارے قریب بیٹھ گئے۔ وہ دونوں گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ شمروز ہے، کمانڈر محب اللہ نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ اس کا نام تم لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ مقبول اور حسن۔ اس نے باری باری دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کھانا کھا کر شمروز کے ساتھ گلمرگ کی طرف روانہ ہو جاؤ، لیکن تم لوگوں کو گلمرگ نہیں جانا، بسال پور بستی میں ہمارا انتظار کرو گے۔ ہم بھی رات کے پچھلے پہر وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کوئی توقع تو نہیں، لیکن اگر کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو گلمرگ کے اوپر سے ہوتے ہوئے فیروز پور پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمجھ گیا کمانڈر۔ مقبول نامی نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور موسیٰ تم؟ کمانڈر محب اللہ نے تیسرے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کھانا کھا کر رحمان کو ساتھ لے کر عبدالغنی لون کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے عبدالغنی لون سے کہاں ملاقات ہوگی؟ جانتا ہوں کمانڈر۔ موسیٰ نے بھی گردن ہلا دی۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر آ گیا۔ شام کا دھندلکا سا پھیلنے لگا۔ مکان سے تقریباً 20 گز آگے شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ میں ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا اور جوتے اتار کر پیر پانی میں ڈال دیے اور آگے جھک کر منہ پر پانی کے چھپکے مارنے لگا۔ مکان کے ساتھ دائیں طرف ایک سائبان سا بنا ہوا تھا اور شاید وہاں باورچی خانہ تھا۔ چاول ابالے جا رہے تھے۔ اس وقت بڑی اشتہا آمیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک ندی کے کنارے پر بیٹھا رہا۔ سبزے دار تاریکی کی وجہ سے مچھر مجھے مال غنیمت سمجھ کر نوچ رہے تھے۔ میں اٹھ کر اندر آ گیا جہاں اب کیروسین لیمپ روشن کر دیا گیا تھا۔ وہ تینوں نوجوان اب بھی کمانڈر کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ 8 بجے کے قریب غفور نے ہمارے سامنے دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ ابلے ہوئے چاول اور مسول کی پتلی سی دال تھی، لیکن یہ دال چاول کھا کر بھی مزہ آ گیا۔ کھانے کے بعد چائے بھی پی گئی اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مقبول اور حسن روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ محب اللہ نے بڑی گرم جوشی سے ہمیں رخصت کیا۔ ہم تینوں کھیتوں میں ایک پگڈنڈی پر چل پڑے۔ مقبول آگے تھا، میں بیچ میں اور حسن پیچھے۔ ان دونوں کے ڈھیلے چوغوں کے نیچے بھی آٹومیٹک رائفلیں چھپی ہوئی تھیں۔ بارہمولہ سے گلمرگ کا فاصلہ 20-22 میل کے لگ بھگ تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا پڑے گا، لیکن تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے ہم رک گئے۔ سامنے ایک جگہ لالٹین کی مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑا چھپر تھا جس کے نیچے بھیڑوں اور بکریوں کا ایک بہت بڑا باڑا تھا اور ایک طرف چند خچر بھی بندھے ہوئے تھے۔ لالٹین زمین میں گڑی ہوئی لکڑی کی بلی میں ایک کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے ایک آدمی تاریکی سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے شروع میں غفور کے
साथ देखा था। हमारी आवाज़ें सुनकर भेड़ें और बकरियां भी मिमियाने लगी थीं और फिर एक खच्चर भी हिनहिना उठा। इसने शायद भेड़ों और बकरियों को इस तरह शोर मचाने पर सरजनिश की थी और हैरत अंगेज तौर पर भेड़ें और बकरियां खामोश हो गईं। खच्चर तैयार हैं, तुम लोग रवाना हो जाओ, इस शख्स ने मकबूल की तरफ देखते हुए कहा। वहाँ कई खच्चर थे। उस शख्स ने 3 खच्चरों की रस्सियाँ खोलकर हमारे हवाले कर दी। यही रस्सियाँ लगाम का भी काम दे रही थीं। मेरा ख्याल था कि खच्चरों पर पूरी ज़ेनें कसी होंगी, मगर हर खच्चर की पीठ पर नुमदे या पुराने कंबल का एक टुकड़ा पड़ा था और दोनों तरफ रुकाबें लटकी हुई थीं। मुझे तो खच्चर की नंगी पीठ पर भी सफ़र करने का तजुर्बा था। मैं उछल कर अपने खच्चर पर सवार हो गया और लगाम थाम ली। हमारी फॉर्मेशन वही थी, यानी आगे मकबूल, उसके पीछे मैं और आखिर में हसन। खच्चर सेहतमंद थे। शुरू में तो रफ्तार कुछ कम रही, फिर मकबूल ने खच्चर दौड़ाना शुरू कर दिया। इन इलाकों में जहाँ दिन के वक्त कदम पर भारतीय फौजियों की किसी न किसी गश्ती पार्टी से आमना सामना हो जाता था, मुजाहिदीन के लिए रात के वक्त सफ़र करना ज़्यादा महफूज था। भारतीय फौजी रात के वक्त अपनी छावनियों और कैंपों से बाहर निकलने की हमाकत नहीं करते थे, जबकि मुजाहिदीन बिला खौफ खतर अपनी नकलो हरकत जारी रखते थे। भारतीय फौजी कैंपों पर उनकी छापामार कार्रवाइयाँ भी रात ही को होती थी। वो भारतीय फौजियों पर मौत बरसा कर रात की तारीकी में पहाड़ों में रोपोश हो जाते थे। बाज़ मकामात ऐसे थे जहाँ भारतीय फौजियों ने चौकियाँ कायम कर रखी थीं, लेकिन ये चौकियाँ आबादियों के करीब आम गुजरगाहों पर थीं, जबकि हम पहाड़ियों में जैसे तंग रास्तों पर सफ़र कर रहे थे जहाँ किसी फौजी पार्टी से आमना सामना होने का अंदेशा नहीं था। रास्ता अगरचे खासा कठिन था, लेकिन हमारी रफ्तार भी खासी तेज़ थी। इस तरह हम 11:30 बजे के करीब बसालपुर पहुँच गए। बसालपुर गुलमर्ग से तकरीबन 5 मील दूर 30-40 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। पहाड़ के दौरान में आबाद इस बस्ती के अतराफ में घना जंगल था। एक तरफ की ज़मीन काश्त के काबिल थी, जहाँ मौसम के मुताबिक फसलें उगाई जाती थीं। मुख्तसर सी खेती बाड़ी के अलावा जंगल की कटाई का सिलसिला भी जारी था। असल कमाई तो इन लोगों की थी जो जंगल की कटाई का ठेका लेते थे। मुकामी लोग तो बेचारे दिन रात मेहनत करके बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाते थे। बस्ती के बाहर दूर तक कटे हुए दरख्तों के अंबार लगे हुए थे। 2-3 देवकामत आरा मशीनें थीं जिन पर सुबह से शाम तक काम होता था, लेकिन इस वक्त हर तरफ सन्नाटा था। बस्ती में दाखिल होते हुए भी मकबूल का खच्चर आगे था और बिलाखिर वो एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। हल्की सी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। वो एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। हम खच्चरों से उतर आए थे। उस औरत ने लालटेन की रोशनी में हमारे चेहरे देखे। मकबूल और हसन को तो वो शायद पहचानती थी, लेकिन मेरी तरफ देखते हुए इसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। परेशान ना हो मासी, ये हमारा ही साथी है, मकबूल ने इसकी उलझन को ताड़ते हुए बताया। औरत ने अंदर की तरफ देखकर हल्की आवाज़ में किसी को पुकारा। फ़ौरन ही एक आदमी दरवाजे पर पहुंच गया। वो भी उसकी तरह अधेड़ उम्र था। नूर मोहम्मद। औरत उस शख्स को मुखातिब करते हुए बोली, हसन और तीनों खच्चरों को अहमद भाई की तरफ ले जाओ और तुम दोनों अंदर आ जाओ। आखिरी अल्फाज उसने मुझे और मकबूल को मुखातिब करते हुए कहे थे। नूर मोहम्मद तीनों खच्चरों और हसन को लेकर गली में आगे चला गया। मैं और मकबूल मकान में दाखिल हो गए। उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें इशारा करते हुए सहन में एक तरफ चलने लगी। सहन खासा वसी और रीस था। सामने 2 कमरे थे। एक कमरा बाएं तरफ था। एल शक्ल के बने हुए इन कमरों के सामने कुशादा बरामदा भी था। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़र अंदर की तरफ उठ गई। सामने ही फर्श पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। मैं रुके बगैर दरवाजे के सामने से गुजरता हुआ साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। वह अधेड़ उम्र औरत भी हमारे साथ ही कमरे में दाखिल हुई। उसने लालटेन कमरे के कोने में रख दी। तुम लोग खाना खाओगे या चाय पियोगे, उसने पूछा। ना खाना ना चाय, मकबूल ने जवाब दिया। बहुत थके हुए हैं मासी, इस वक्त तो सोना चाहते हैं। औरत वापस चली गई। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। फर्श के आधे हिस्से पर दरी बिछी हुई थी और आधे हिस्से पर चिटाई थी। दरी पर एक बिस्तर भी बिछा हुआ था और 2 कंबल पड़े हुए थे। साथ ही मैले से तकिए भी रखे हुए थे। दीवार पर लगी हुई खूंटियों पर चंद कपड़े टंगे हुए थे जिनमें 2 जनाना जोड़े भी थे। बिस्तर को देखकर अंदाज़ा होता था कि अहले खाना को हमारी आमद की इतला पहले से थी और हमारे लिए सोने का बंदोबस्त कर रखा था। मैंने अपने कांधे पर लटकी हुई SMG दीवार के साथ खड़ी कर दी। जूते उतार कर एक तरफ डाले और बिस्तर पर ढेर हो गया। खच्चर पर तकरीबन 4 घंटों के सफ़र ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। मैं लेटे ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खुले हुए दरवाजे के बाहर आंगन में धूप फैली हुई थी। मकबूल कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। मेरी SMG भी गायब थी और मकबूल की राइफल भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर बाहर से मकबूल की आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मकबूल उस अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रहा था। औरत ने मेरी तरफ
طرف देखा और फिर सहन के बाहर वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ मकबूल के करीब पहुंच गया। मकबूल, हमारी राइफलें गायब हैं। मैंने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। परेशान मत हो, राइफलें महफूज हैं, मकबूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिन में भारतीय फौजियों की कोई ना कोई पार्टी इस तरफ आ जाती है और वो लोग असले की तलाश में घरों की तलाशी भी लेते हैं। हमारी राइफलें भी छुपा दी गई हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम मुँह हाथ धो लो, खाना तैयार हो रहा है। मकबूल कमरे में चला गया और मैं सहन में उस तरफ चला गया जहाँ पानी का ड्रम रखा हुआ था। करीब ही पानी से भरी हुई एक बाल्टी और प्लास्टिक का लोटा भी रखा हुआ था। मैंने नल की टूटी खोल दी और मुँह हाथ धोने लगा। मैंने वहीं खड़ी खड़ी कमीज़ के दामन ही से मुँह साफ किया और जैसे ही मुड़ा मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। सांस की रफ्तार तेज़ हो गई और दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो लड़की हमारे कमरे से निकल रही थी। ये वही लड़की थी जिसे रात को मैंने लैंप की रोशनी में कढ़ाई करते हुए देखा था। रात को तो दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उस पर सिर्फ एक नज़र डाली थी और अब वो तमाम तरह हशर सामान के साथ मेरे सामने खड़ी थी। लंबा कद, सडोल जिस्म, गुलाबी जैसी रंगत, गजाल जैसी मोटी मोटी सी आंखें जिनमें सितारों जैसी चमक थी। इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। उसने काले रंग का टखनों तक लंबा कुर्ता पहन रखा था। वी शेप के गले पर सफ़ेद और पीले धागे की कढ़ाई थी। इसकी उम्र 18 साल के लगभग रही होगी, लेकिन जवानी का समर खासा नुमाया था। सीने पर से कुर्ता तना हुआ था। स्याह बालों की 2 चोटियाँ थीं और दोनों चोटियाँ सीने पर झुकी हुई थीं। मैंने खाना रख दिया है, मकबूल भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे कानों में चांदी की नन्ही नन्ही सी घंटियाँ गुनगुना उठी हों। मैंने चौंक कर एक बार फिर उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में आ गया। वो अंगूरी थी, खादम हुसैन की बेटी, जो 3 साल पहले बडगाम के करीब भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। अंगूरी की माँ आयशा ने बड़ी मेहनत से इसे पाला था। होना तो ये चाहिए था कि शौहर की शहादत के बाद आयशा अपनी जवान बेटी को लेकर कहीं दुबकी रहती और खामोशी से ज़िंदगी बिता देती, मगर वो कश्मीर की बेटी थी। वतन की आज़ादी की लगन ने उसे भी तड़पा रखा था। वो दुश्मन के खिलाफ राइफल नहीं उठा सकती थी, मगर मुजाहिदीन का साथ भरपूर अंदाज में दे रही थी। खादम हुसैन जब जिंदा था तो ठेकेदार के पास काम किया करता था। वो शाम तक आरा मशीन पर कटे हुए दरख्तों के तनों को काट छांट कर बड़े बड़े शहतीरों में ढालता रहता। ये शहतीर ट्रकों में लाद कर श्रीनगर भेज दिए जाते, जहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों को रवाना कर दिए जाते। खादम हुसैन की शहादत के बाद आमदनी का ये जरिया ख़त्म हो गया। आयशा और अंगूरी कशीदाकारी का काम करने लगी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। वादी कश्मीर को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से तो नवाजा भी था, यहाँ के वासियों को भी ऐसी सलाहियतों से मालामाल किया है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अफसोस की बात तो ये है कि अगियार उनकी सलाहियतों और हुनरमंदी से तो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और वो खुद फाका कशी का शिकार हैं। कालीन, धुसे और शालें इस नफासत से तैयार की जाती हैं कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है। कालीन, धुसे और शालों की तैयारी घरेलू सनत की हैसियत रखती है। ये काम फैक्ट्रियों में नहीं, छोटी छोटी बस्तियों के घरों में होता है। ज़ख्मी भेड़ों की ऊन से दुनिया की बेहतरीन शालें तैयार होती हैं, जो शातोज कहलाती हैं। ये शालें बहुत महंगी होती हैं और इस कदर नफीस और बारीक होती हैं कि अंगूठी में से गुजारी जा सकती हैं। घरों में ऊन के नुमदे भी बड़े खूबसूरत तैयार होते हैं और अखरोट की लकड़ी से इस कदर खूबसूरत और नाजुक नक्श फर्नीचर तैयार होता है जिसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। हुनरमंदी में कश्मीरी ख़वातीन भी मर्दों से पीछे नहीं है। ये काम ज़्यादातर घरों में ख़वातीन ने संभाल रखा है। कपड़ों पर कश्मीरी कशीदाकारी की मांग तो पूरी दुनिया में है। कारोबारी लोग वादी की छोटी छोटी बस्तियों में ख़वातीन से ये काम करवाते हैं। खुद तो वो लाखों कमाते हैं, लेकिन केरोसिन लैंप की मुंदमल रोशनी में दीदों का पानी निचोड़ने वाली हुनरमंद ख़वातीन को मुआवजा बराए इनाम ही दिया जाता है। मैं और मकबूल देर तक कमरे में लेटे बातें करते रहे, फिर उठकर बाहर आ गए। मासी आयशा इस वक्त बाहर से आई थी। इसने बगल में एक पोटली दबा रखी थी। खाना खा लिया बेटा? इसने हमारे करीब आकर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हाँ मासी, मकबूल ने जवाब दिया। मैं ज़रा अब्दुल हक से मिलने जा रहा हूँ, 1.5-2 घंटों में वापस आऊँगा। वो आरे पर ही होगा ना? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे उस तरफ जाते हुए देखा था, मासी ने जवाब दिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, और बेटा तुम इधर पिछली तरफ चले जाओ, वहाँ दरख्त का साया भी है, लेकिन अगर तुम कमरे में आराम करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मासी आयशा अपने कमरे में चली गई। मकबूल अब्दुल हक से मिलने के लिए चला गया। अब्दुल हक का कमांडर मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद जैसे मुजाहिद लीडरों से रब्ता रहता था। यहाँ मुजाहिदीन को पैगाम भी उसके तवस्सुत से मिलते थे और मकबूल यही मालूम करने जा रहा था कि कमांडर मुहिबुल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आया है या नहीं। उसके जाने के बाद मैं तन्हा सहन में खड़ा इधर उधर देखता रहा। मेरी नज़रें अंगूरी को तलाश कर रही थीं। न जाने क्या बात थी कि सुबह उसे देखने के बाद से मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। बकौल शख्स से जब मैं उसके बारे में सोचता तो दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मैं बार बार उस कमरे
कमरे की तरफ देखता जहाँ मासी आयशा गई थी, लेकिन ना तो मासी आयशा कमरे से बाहर आई और ना ही अंगूरी की सूरत दिखाई दी। कमरों के पिछली तरफ भी एक सहन था, उस तरफ जाने का रास्ता दाएं तरफ से था। उस तरफ जाने के लिए मैं जानबूझकर मासी आयशा वाले कमरे के सामने से गुजरा। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने से गुजरते हुए मैंने किनखियों से अंदर झांका, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई। कमरे में मासी आयशा किसी काम में मसरूफ़ थी, लेकिन अंगूरी दिखाई नहीं दी। वो शायद घर में ही नहीं थी। मैं कमरों के ऊपर से घूमकर पहलू की तरफ आ गया। दाएं तरफ तकरीबन 8 फीट ऊंची कच्ची बाउंड्री वॉल थी। इस तरफ यहाँ एक गुलियारा सा बन गया था। इस गुलियारे से गुजरकर मैं जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा, ठिठक कर रुक गया। सामने ही अखरोट के बहुत बड़े दरख्त के घनेरे साए में बिछे हुए लकड़ी के तख्ते पर बैठी हुई वो किसी कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही सीने में मेरा दिल मचल उठा और धड़कन बेकाबू हो गई। अंगूरी ने मुझे नहीं देखा था। वो सर झुकाए सुई से कपड़े पर टांग के भरती रही और फिर शायद सुई में धागा खत्म हो गया। इस वक्त उसने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया, मुझे सामने देखकर इसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई और इसी वक्त अकब से मुझे मासी आयशा की आवाज़ सुनाई दी, अरे बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना, वहाँ जाकर दूसरा तख्त खाली पड़ा है। मैं तसव्वुरात की दुनिया से बाहर आ गया और मासी आयशा के साथ ही आगे बढ़ गया। यकबी आंगन भी बहुत कुशादा था। अखरोट का दरख्त बहुत ऊंचा और बहुत फैला हुआ था। इसके घनेरे साए ने आंगन के बेशतर हिस्से को लपेट में ले रखा था। चारपाई साइज के लकड़ी के 3 तख्ते करीब करीब पड़े हुए थे। एक पर अंगूरी बैठी कढ़ाई कर रही थी। करीब ही सुई धागों वाला डब्बा रखा हुआ था और कुछ कपड़े फैले हुए थे। दूसरे दोनों तख्त खाली थे। अंगूरी ने सुई कपड़े में खोंच दी, कपड़े को एक तरफ रखा और उठकर दूसरे तख्ते पर चादर बिछा दी। बैठ जाइए, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर उसकी नज़रें फौरन ही झुक गईं। इसकी झुकी झुकी सी पलकें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं पैर लटका कर तख्त पर बैठ गया। अंगूरी भी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसका रुख मेरी तरफ था और मैं किनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने सर पर रुमाल बांध रखा था और बालों की दोनों चोटियां इस वक्त भी इसके सीने पर दोनों तरफ टिकी हुई थी। उसे शायद चोटियां आगे डाले रखने की आदत थी। अंगूरी की कैफियत भी इस वक्त शायद मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। इसके चेहरे पर सुर्खी गहरी हो गई थी और सीने का जीरो बम नुमाया हो रहा था। कपड़े पर टांका बदलते हुए उसने झुकी झुकी सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और इसके साथ ही इसके होंठों से सी की आवाज़ निकल गई। सुई इसकी उंगली में चुभ गई थी। मैं भी बेचैन सा होकर उठा। मुझे लगा जैसे सुई अंगूरी की उंगली में नहीं मेरे दिल में चुभी हो। वो उंगली को मुंह में दाब कर चूसने लगी। ए लड़की, ध्यान से। करीब बैठी हुई मासी आयशा ने इसे घूरा। अंगूरी ने एक बार फिर किनखियों से मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मासी आयशा ने वो पोटली खोल ली जो वो बाहर से लेकर आई थी। इसमें बिन सिले जनाना कपड़े और रंग बिरंगे रेशमी धागों की लचियां थीं। इन कपड़ों पर डिज़ाइन भी ट्रेस किए हुए थे। मासी आयशा कपड़े के साथ धागों की लचियां भी अलग अलग करके रखती रहीं और इसके साथ ही वो अंगूरी से बातें भी करती रहीं। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, शमरोज़ बेटा, तुम्हें पहली बार देखा है, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ के रहने वाले हो। ये पूरी वादी मेरा घर है मासी, मैंने जवाब दिया। वैसे मेरी पैदाइश सोपुर की है, वहीं पला बड़ा और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरे वालिद रसूल बख्श लून कस्बे की मस्जिद के पेश इमाम थे। हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी, लेकिन एक रोज़ मैं एक लम्हे को खामोश हुआ। फिर कस्बे पर भारतीय फौजी दस्ते के हमले और उनकी कत्ल व गारत के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, मैं भी इस झड़प में शदीद जख्मी हुआ था। भारतीय फौजी मुझे मुर्दा समझकर फेंक गए। होश आया तो अपने करीब कस्बे की 2 लड़कियों की नची हुई लाशें देखी। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। इस मरतबा खामोशी का वक्फा कदरे तवील था। वो दोनों माँ बेटी अफसरदा सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं बात जारी रखते हुए कह रहा था, इत्तफाक से कमांडर मुहिबुल्लाह अपने आदमियों के साथ उस तरफ आ निकला और मुझे उठा लिया। मैं शायद मर ही चुका होता, मगर डॉक्टर मरियम ने मुझे नई ज़िंदगी दी। अगर वो न होती तो। मरियम तो फरिश्ता है बेटे, मासी आयशा ने कहा। इसने तो अपने आप को मुजाहिदीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया है। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है पहुँच जाती है। घर का ऐशो आराम छोड़कर उसने पहाड़ों में ख़तरनाक ज़िंदगी अपनाई है। बल्कि यूँ कहो कि इसने भी मुजाहिदीन की तरह अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रखी है। बड़ी दलेर लड़की है। हौसले और जज्बे की बात है मासी, मैंने कहा, और इंशाअल्लाह ये जज्बा ही हमें आज़ादी की मंजिल तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। अंगूरी की आवाज़ सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। इस बार वह मुझे अपनी तरफ देखते पाकर शर्माई नहीं। इसके होंठों की मुस्कुराहट भी वाज़ेह हो गई थी। इस वक्त मुझे इसकी आंखों में अजीब सी चमक नजर आई। ऐसी चमक तो मैंने उन मुजाहिदों की आंखों में देखी थी जो मादर वतन की आज़ादी के लिए भारतीय दरिंदों के खिलाफ बरसर पैकार थे। मैंने और मासी आयशा ने भी बैक वक्त इंशाअल्लाह कहा, अरे बेटी जा, चाय तो बना कर ला, बड़ा जी चाह रहा है। मासी आयशा ने अंगूरी की तरफ देखते हुए कहा। अंगूरी ने सुई धागा और कपड़ा समेट कर एक तरफ रख दिया और तख्त से उतर कर मेरी तरफ देखती हुई गुलियारे में चली गई। मासी आयशा अपना काम करते हुए मुझसे बातें करती रही। इसने भरपूर
انداز میں میرے قصبے کی تباہی اور میرے گھر والوں کی شہادت پر اظہار ہمدردی کیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد انگوری گلیارے کی طرف سے نمودار ہوئی۔ اس نے پلاسٹک کی ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں شیشے کے 2 چھوٹے گلاس قہوے سے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اگرچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چل رہی تھی، لیکن ڈھیلے ڈھالے کرتے کے اندر اس کے گداز سینے کے ابھار اس طرح متحرک تھے جیسے جوانی چھلک رہی ہو۔ قریب آ کر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے ایک گلاس میرے قریب تختے پر رکھ دیا اور دوسرا ماں کی طرف بڑھا دیا۔ تو اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی ماسی؟ عائشہ نے کہا۔ نہیں ماں، میرا دل نہیں چاہتا، انگوری کہتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوئی دھاگا سنبھال کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔